आपको देवो बहन, आपको कोई क्वेश्चन है? एक ये कर सकते हैं, ड्रामा वाला दीदी ने भेजा क्या दीदी, कहीं पे नीचे वाला इजी वाई वाला, लास्ट वाला पॉइंट वाज ड्रामा, राइट? इजी वाई, द सीक्रेट ऑफ थर्ड डॉट. Is it still with the first class, or is it related to drama? Because I see the frequently mentioned three dots, soul, God, and drama. लास्ट ड्रॉट जो ड्रामा बोला है वही दीदी 31st को क्लास कराएंगे. Okay. दैट इज द राइट अप. अच्छा, so I was referring to ये वाला MN August 27, 2005. ठीक है. The persistence expression Maya is false, the body is false, and the whole world is false. This is ये वाला. I was referring to this one. अच्छा. 0. सोनी बहन, ओम शांति. ओम शांति दीदी. आप कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे? कौन सा डिस्कशन करना चाहेंगे? यही वाला, ये जो था ना कल का जॉइनिंग शेयर किया दीदी ने, उसमें जो एंगर है, पहले दीदी ने एंगर बताया है, एंगर के डिसएडवांटेजेस बताए हैं, फिर उसके साथ अटैचमेंट को वो किया है, कोरिलेट किया है. वो माया वाला. हाँ, लास्ट में पहले वो उन्होंने अटैचमेंट, उन्होंने एंगर को पहले स्लोगन के थ्रू, फिर एंगर से क्या होता है उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने अटैचमेंट वाला पॉइंट स्टार्ट किया है. मैं आपको बताऊं, मैंने नोट्स में डाला था. यही वाला है क्या? द परसिस्टेंट एक्सप्रेशन माया इज फॉल्स. हाँ, यही वाला दीदी. इसी में. अच्छा, इसको पढ़ते हैं, है ना? हाँ, ओके दीदी. तो फिर क्लियरिटी आएगा. और एक चीज और थी कि ये नॉन थियोलॉजिकल रिलीजन का क्या मतलब है दीदी, मुझे ये भी समझ में नहीं आया था. अच्छा, पढ़ते हैं इसको. ओके. तो मुरली नोट्स, August 27, 2025. The persistent expression Maya is false, the body is false, and the whole world is false. तो झूठी माया झूठी काया वाला बात है. This is often used, remembered, yet no one really knows what it means. Consider the concept of zero. It was first defined in India by the mathematician Brahmagupta. The word shunya is used to represent the idea of zero, nothing. Mathematically, it lies between +1 and -1. The concept of zero was spread to the Islamic world, which then went to the Roman world and was called Zephyrum in Latin, which became zero. This was adopted in Europe in 12th century, causing advances in algebra, accounting, and science. Algebra is an Arabic word. Scientifically, there is the idea of 0K, 0 degrees Kelvin, also called absolute zero, for the temperature at which particles almost but not quite stop moving. In physics, 0-point energy refers to emptiness in space, but which is never truly empty. In religion and spirituality, zero was considered important by non-theological religions and dangerous or blasphemous by theological religions of the Western world. तो स्पिरिचुअलिटी में ज़ीरो और रिलीजन में ज़ीरो. नॉन थियोलॉजिकल रिलीजन्स का मतलब वो पहले भी दीदी ने बताए थे ना, एक तो थियोलॉजिकल और दूसरा क्या था? मानसी बहन ने ज्वाइन किया वो ये है कि the study of religion, belief, particularly focusing on the nature of God, the doctrines of the specific religion.
डॉक्ट्रिन्स मीन्स धर्मशास्त्र वगैरह पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। स्क्रिप्चर्स। मीन्स स्क्रिप्चर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म, तो सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहिब को ही सब कुछ मानते हैं, हाँ, तो मीन्स वो तो वर्शिप व्हाट आई आइडल फील कि किसी ने वो स्क्रिप्चर लिखा है और उसके हिसाब से सबने फॉलो किया है। तो zero was considered important by non-theological religions and dangerous or blasphemous by theological religions of the Western world. This means, आगे पढ़ के देखते, this means that through the ages the concept of zero has been predominant in the thinking of scientists, religious authorities and mystics. It seems to have been as important in the search for the answer to the riddle of perpetual motion. The concept of zero puts an individual in front of the concept of reality. हाँ, वो शून्य वाला स्टेट जो हम लोगों ने भी पहले समझा था ना, कि जहाँ पर कुछ नहीं है, नथिंगनेस, जो साइंस में भी हमने पढ़ा था पहले, ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, वो वाला शायद दीदी समझा रहे कि व्हाट इज़ रियलिटी इन इंडिया। इन द वेदांतिक ट्रेडिशन देर इज़ द एक्सप्रेशन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। Brahm refers to the non-material and Jagat refers to the world that is the material world that is perceived through sense organs. तो material world को ही जगत कहते हैं। The Gita says sense perception is deceptive. That implies that what you see, hear, taste, touch and smell is not really there, or it seems to be good but may be bad, or it seems to sustain you but may deplete you. Material science is based on the concept that for something to be real it must be material. माना सेंसेस द्वारा जो दिख रहा है उसको सत्य मान रहे हैं। If it cannot be measured, it does not exist. अगर फीलिंग्स द्वारा मेजरमेंट नहीं होता है तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। माना वो जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला स्टेट जो है, दैट इज़ नॉट वैलिड। द 3 dots, which can also be defined as 3 zeros, are non-material. If you accept that तीनों ही नॉन मेटेरियल है, एक सोल, एक सुप्रीम सोल और ड्रामा। If you accept that you are a soul which is non-material, then you accept that you are real yet cannot be discerned by sense perception. तो सोल नॉन मेटेरियल है क्योंकि सेंस द्वारा परसीव नहीं किया जाता है। कर्मेंद्रिय द्वारा ना देख पाते, ना सुन पाते, ना सेंस कर पाते हैं। पर ये रियल है, पर सेंस परसेप्शन द्वारा डिसर्न नहीं कर पाते हैं। योर एग्जिस्टेंस इज साइंटिफिकली प्रूवन टू बी नॉट देयर। तो इस सोल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसे कहते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। द सोल, गॉड एंड इटर्निटी आर इनएक्सप्लिकेबल टू बोथ साइंस एंड थियोलॉजिकल रिलीजन्स। तो जो स्क्रिप्चर लिखा है और बाकी जो रिलीजन है, जो रिलीजियस माइंडेड पीपल है, वो लोग सोल, गॉड और इटर्निटी को इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं। However, you are enjoined to believe in them via blind faith. है ना,
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भगवान कौन है उसका समझ नहीं है, उनके बारे में नहीं जानते हैं, सोल के बारे में नहीं जानते, इसलिए जैसे आत्मा नाम के कुछ है, भगवान नाम के कुछ है, एक ब्लाइंड फेथ के हिसाब से बिलीव किया है। ठीक है, तो फिर जो ऊपर वाले लाइन जो दीदी ने हर जगह पे वो ज़ीरो वाला स्टेट के लिए बोला है, तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ज़ीरो वाज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय नॉन थियोलॉजिकल रिलीजन्स, जो स्क्रिप्चर्स वगैरह को नहीं फॉलो करते हैं, एंड डेंजरस, वो ज़ीरो स्टेट डेंजरस है बाय थियोलॉजिकल रिलीजन्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये समझा है। तो ज़ीरो जो है उसका उस कंसेप्ट को भिन्न भिन्न जगह पे कैसे माना गया है वो समझाया है। राइट सोनी बहन, समझ में आया अभी ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा? हाँ दीदी। तो आगे, बुद्धिस्ट, Vedic, Hindus and scientists consider that there is something, but not that that something is someone. Consequently, there arises the concept of the omnipresence of God or the non-existence of God as an individual being. तो omnipresence of God तभी आया है क्योंकि उनको कुछ ऐसे होना चाहिए जो आँखों से दिख रहा हो, जो परसीव नहीं कर पा रहे हैं सेंसेस द्वारा, वो गॉड नहीं मान पा रहे, क्योंकि वो सटल स्टेट में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आइदर ये समझते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नहीं तो कोई मनुष्य को भगवान का नाम दे देते हैं। जैसे कुछ गुरुज को भी नाम के आगे भगवान लिखा जाता है। तो ओमनी प्रेजेंस का कंसेप्ट आ गया फिर। नाउ शिव बाबा इज सेइंग, आई गिव यू 3 dots, 3 zeros, which will open the lock to a great treasure. उस दिन जो मुरली में कहा लास्ट संडे, 3 dots, एक आत्मा डॉट, एक परमात्मा डॉट और ड्रामा डॉट। दिस एक्सप्रेशन माया इज फॉल्स, द बॉडी इज फॉल्स, द होल वर्ल्ड इज फॉल्स इज ए की टू दिस की। द होल वर्ल्ड इज फॉल्स माना वो वर्ल्ड जो दिख रहे हैं, क्योंकि माया को एक्सप्रेशन जो माया है, माया को कुछ और समझा है, माया को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समझा है जो सेंसेस द्वारा दिख रहे हैं। एक्चुअल माया हमारे अंदर जो एक्सपीरियंसेस अनुसार जो भी कंडीशनिंग हो रखा है वो माया के रूप में आती है। बट दुनिया के हिसाब से माया कुछ और है, जैसे धन को कहते हैं माया, या किसी लेडी को माया कहते हैं। तो माया फॉल्स कहा और बॉडी इज़ फॉल्स, द होल वर्ल्ड इज़ फॉल्स। तो ऐसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब एक कंसेप्ट निकला है जो रिलीजियस माइंडेड पीपल ने माना है, बॉडी को, माया को और पूरा वर्ल्ड को। इन दिस कंटेक्स्ट फॉल्स मीन्स डिसेप्टिव, ये सब डिसीव करने वाले हैं। इन बीके
Maya is considered to mean the 5 vices. This is mentioned in the Bhagavad Gita, chapter 2, verses 60 to 63 as a specific unfolding of emotions. तो वो जो वर्सेस में क्या ट्रांसलेशन है, फॉर ए मैन ड्वेलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, dwelling on the objects of the senses, and attachment to them is born. कोई भी चीज़ है जिस चीज़ को सेंसेस द्वारा परसीव कर पा रहे, उसके प्रति एक अटैचमेंट ग्रो करता है. जैसे देख लेते हैं तो फिर वो अटैचमेंट से डिज़ायर ग्रो करता है. और जब डिज़ायर जब ग्रो करता है, वहाँ पर जब पाने का इच्छा होता है, तो वो पाने के लिए एंगर ग्रो होता है, क्योंकि एक इम्पेशेंस आता है अंदर में उसको वांट वाला स्टेज में लाने के लिए, उसको पाने के लिए. एंड फ्रॉम एंगर अराइजेस डिल्यूजन. और जैसे डिल्यूजन आता है, लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाते हैं, जो सत्य है उसको भूल जाते हैं. एंड फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. एंड फ्रॉम लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वन इज लॉस्ट. तो कैसे इमोशंस में फंस गए हैं, वो गीता में लिखा हुआ है. द ऑर्डर इन विच दे अराइज आर अटैचमेंट, फिर लस्ट इज कामना, फिर एंगर, फिर डिल्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल डोमिनेंस. तो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाता है, फॉल कर जाता है, और बॉडी कॉन्शियसनेस ग्रो कर जाता है. These two verses of the Bhagavad Gita are the basis on which it is said that there are 5 vices. Dwelling on objects of the senses means people, places and objects. This refers to the material world. The society including animals and other creatures, territory including your country, patriotism, loyalty to the social, religious and geopolitical context in which you were born, which includes culture. दूसरा है territory means your country, region, real property, sense of ownership, which generally attends to people who you consider belong to you. Sense of belonging is included in this. मतलब सेम जगह का जब एक पर्सन होते हैं तो फिर उनको प्रायोरिटी देने लगते हैं. एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट, स्टेटस सिंबल्स, पोजिशन दैट इंडिकेट स्टेटस, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट इंडिकेट योर इम्पोर्टेंस ओवर अदर्स. तो स्टेटस दिखाने के लिए, एक ऊंचा पोजीशन दिखाने के लिए बाहरी रूप से कुछ एक्सप्रेस करना. इफ़ यू आइडेंटिफाई विथ दिस, एक तो सोसाइटी, एक जगह का और एक स्टेटस. इफ़ यू आइडेंटिफाई विथ दिस, शिव बाबा कॉल्स दिस बॉडी कॉन्शियसनेस. ऑल पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर बाय definition ephemeral, perishable. You will lose all of them sooner or later. This includes your body. All these things are part of the stage upon which the soul plays his role. So body is the stage.
और रोल प्ले करने के लिए वो बॉडी को यूज़ कर रहे हैं. द ड्रामा itself is real, but none of the elements of the stage can be called real because they are ephemeral, perishable. तो ड्रामा जो अंदर में जो फीलिंग्स है माइंड में और जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं बाहर एक्शन के रूप में, वो रियल है. पर स्टेज में जो भी चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दैट इज़ नॉट ड्रामा, दैट इज़ नॉट रियल. Raj Yoga is the practice of being so aware of the three dots, Atma, Paramatma and Brahma, that you do not get deluded in acting as if these ephemeral things or lack of them dictate how you feel and what you do. तो ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होने से भी हम ड्रामा के साथ अलाइंड रह पाते हैं. मेटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं. जब वो 3 डॉट्स का अवेयरनेस रहता है, वो न्यूट्रल स्टेट में टिकते हैं. योर रिलेशनशिप विथ पीपल एंड क्रीचर्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स इज कंटिंजेंट upon whether or not you get benefit from them. The depleted soul is hungry. Body consciousness means to sustain the self by consuming the things of the material world. तो जब डिप्लीटेड सोल होते हैं तब मटेरियल वर्ल्ड के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसी से ही एनर्जी लेते हैं थोड़े समय के लिए. यू ट्राई टू टेक एनर्जी फ्रॉम पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स. हाउएवर दिस एनर्जी लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, देन यू आर अगेन हंग्री. एक्चुअली क्या है? इट इज़ एन एडिक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है. ये है कि मुझे ये मिला है और जब वो मिलता है उसका एक्सपीरियंस फील होता है तो बार बार उसी के तरफ मन भागता है. जब भी डिप्लीटेड होते हैं उसी चीज़ के तरफ एक आकर्षण होता है जो खींच के ले जाते हैं. एक्चुअली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दैट गिव्स कंफर्ट, दैट डजंट गिव हैप्पीनेस. क्योंकि जब मन डिस्टर्ब होते हैं, लो फील करते हैं, तब वो कंफर्ट वाला चीज़ से खुशी नहीं मिलता है. कोई कुछ कहना चाह रहे? हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. आप बहुत सही बोल रहे हैं. जब लो फील करते हैं तो हम कंफर्ट की तरफ जाते हैं. कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमने सेंस परसेप्शन के थ्रू एक्सपीरियंस किए उसकी तरफ हम इंक्लाइंड होते हैं, बट वो हैप्पीनेस नहीं देते हैं अकॉर्डिंग आप जैसा बोल रहे हैं. यस. बट फिर भी वो कंफर्ट हैप्पीनेस नहीं दे रहे, मतलब वो सोल उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है. राइट. तो फिर क्यों इतना इंक्लाइनेशन होता है दीदी जब सोल उससे कंटेंट ही नहीं हो पा रही है? एक्चुअली ये एक परसेप्शन है कि जहाँ कंफर्ट है, एक मिसपरसेप्शन है एक्चुअली कह सकते हैं. जहाँ कंफर्ट है वहाँ हैप्पीनेस है, पर एक्चुअली कंफर्ट इज नॉट रिलेटेड टू हैप्पीनेस. क्योंकि वहाँ जाके भी अगर हम वर्क नहीं करते हैं तो फिर वो हैप्पीनेस आते नहीं है. इसी वजह से वो एडिक्शन के तरफ क्यों जाते हैं. जैसे एडिक्शन जो होता है, कोई भी एडिक्शन को जब अपनाते हैं तो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और ब्रेन को जब स्टिमुलेट करता है तो
डोपामिन सिक्रेशन होता है जो एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है, और वो सेंस ऑफ वेलबींग का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, और वो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बार बार जब भी वो स्थिति होता है, लो फील करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस याद आने लग जाता है, और उसका पुल, क्योंकि मन अगर स्टेबल नहीं है, मन अगर डिस्टर्ब्ड है, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और Right. वो इम्पेशेंस उस जगह उस तरफ खींच के ले जाते हैं जहाँ पर इजीली मुझे खुशी मिलेगा। Okay. Right. कुछ और सोचने का, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना है वहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, पर वो पेशेंस रखने का समय ही नहीं है, Right. है ना। जल्दी से हम मुक्त होना चाहते हैं, और वो भले टेम्परेरी है, और वो टेम्परेरी फीलिंग को पाने के लिए एडिक्शन अपना लेते हैं। एंड एक एडिक्शन वो भी है इमोशंस। इन दिस सेंस यू कैन से द 5 vices आर एडिक्शंस, क्योंकि क्या करते हैं, हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि गुस्सा करके आप किसी को, जो कोई भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप गुस्सा कर दोगे तो उसको बहुत जल्दी से हटा सकते हो। ये हमारे माइंड में कंडीशनिंग हो रखा है, Right. और ये फास्ट एक्शन है, क्योंकि खुद में पावर नहीं है कि उस आत्मा के बातों से, जो आत्मा मेरे सामने खड़ी होके कुछ मेरे तरफ कुछ कह रहे हैं, सपोज मुझे ब्लेम कर रहे हैं, या कुछ वो एंगर दिखा रहे हैं, या जो भी है, तो खुद को संभालने का वो पेशेंस नहीं है, वो ताकत भी नहीं है। खुद के अंदर ताकत ना होने के कारण दूसरों के ऊपर वो 5 vices को यूज़ करके उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। इंटेंशन यही है, मुक्ति ही है, बट इन ए रॉन्ग वे। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि इमोशंस को यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने सोच लिया कि गुस्सा करना तो नॉर्मल है। No one has ever been able to overcome an addiction except by increasing their spiritual energy through conscious contact with God. क्योंकि वो हिम्मत का जो एक कदम है बाहर से अंदर जाने के लिए, क्योंकि एक बार आप बाहर चले जाते हो, क्योंकि सेंसेस तो बाहर, सेंस परसेप्शन द्वारा तो बाहर ही देखते हैं, और बाहर से अंदर स्टेप इन करना होता है, और अंदर स्टेप इन करने के लिए हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। हिम्मत भी करनी होता है, और वो हिम्मत बाबा से ही मिलता है, कांटेक्ट, बाबा के कांटेक्ट से, Right, Didi. which is called yoga. God says it is an illusion to believe that you can get sustained by any people, places or objects. ये illusion है, क्योंकि सोर्स एक बाबा ही है। You can only get real energy from me, the second dot, परमात्मा। एक पहला आत्मा, सेकेंड डॉट क्या है, परमात्मा। द ड्रामा स्टेज इज मेड अप ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो स्टेज में है पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे कनेक्ट हो रहा है तीनों डॉट, ये आप ध्यान देना। तो ड्रामा में क्या है, पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसका सहारा आज तक हमने लिया था मन को खुश करने के लिए।
या किसी आत्मा को 5 वाइसेस, आत्मा के ऊपर 5 वाइसेस यूज़ करके उस आत्मा को एनर्जी का सोर्स बना लेना. यू मस्ट सस्टेन योर बॉडी फ्रॉम टेकिंग बेनिफिट. हाँ, ओम शांति. ओम शांति. अगर पीपल प्रिंसेस ड्रामा में है, सॉरी बाहर है, और तो फिर अंदर क्या है? आवर ओन एक्शंस, आवर ओन थॉट्स. थॉट्स है, द वे यू अंडरस्टैंड द सीन को, हाँ, जो हो रहा है उसको, सीन को समझ कर अंदर स्पिरिचुअलिटी पूरा. ओके ओके. है ना. तो 3 डॉट एक साथ अंदर में है. और बाहर पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स. You must sustain your body from taking benefit from people, places and objects. बॉडी को सस्टेन करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, कंफर्ट लेना बुरा नहीं है, पर उसके लिए स्टेज में जो है पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, वो ज़रूरी है. बट इफ़ यू ट्राई टू सस्टेन योर सोल, सोल के लिए नहीं है. If you try to sustain your soul from it, it will backfire badly. क्योंकि वो spirituality नहीं है. This is the meaning of Maya is false. जहाँ पर सेंस परसेप्शन द्वारा कुछ पाने का सोच रहे हम, वो है माया. क्लियर हुआ? The second statement, the body is false. If you think you are your body, it creates false ego. You act as if you are your beauty, money, power, position, property, security, role, spheres of influence, etc. However, these things will fail you. False ego makes you do karma that becomes negative. तो ये सारे जो बॉडी द्वारा अचीव किया है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो है द बॉडी इज फॉल्स, फॉल्स ईगो, जिसके बेसिस पर सरवाइव करते हैं, पावर फील करते हैं. एक्चुअली पावरलेस है, बाहरी रूप से पावर. क्योंकि ये सारे क्या है कि जब ख़त्म हो जाएगा तो पावर भी जाएगा, पेरिशेबल है. फॉल्स ईगो मेक्स यू डू कर्मा दैट बिकम्स नेगेटिव. Note that Baba often says karma becomes good or bad. He never says it is good or bad. बाबा नहीं कहते हैं. BK say it is good or bad. To be aware that karma becomes good or bad is an attribute of soul consciousness. माना discern करना, which is pure karma and which is impure karma. To say karma is good or bad is an aspect of body consciousness. ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, माना एक्चुअली ये कंसेप्ट अच्छा बुरा का नहीं है. This is subtle and needs to be pondered. If you believe particular acts are good or bad, it means you are body conscious and do not understand some important subtleties of Gyan. This belief will fail you. This is the meaning of the body is false. समझ में आया? बॉडी द्वारा जो एक्शन कर रहे हैं
उसके लिए इस दुनिया में अच्छा बुरा डिफाइन किया है. ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है. हाँ, जैसे यहाँ पे बोला ना कि your karma is good or bad is an aspect of body, but karma becomes good or bad, that is for soul. yes, So when we are saying that karma is good or bad, that means we are fixing it, that it can never be changed or turned. but Right? it is through sense perception, right? Yeah, yes, definitely. You हाँ. are not able to see सूक्ष्म में सटल में जो चीजें चल रही है Yes, वो आप नहीं देख पाते. जैसे हम जब ज्ञान में नहीं थे तो we fix कि this person is bad because he is doing bad karma. Not the karma is bad which he can change. yes. बाहरी रूप से अंदर होता जाता है. जैसे बाहरी रूप से जब कहते हैं कि ये अच्छा कर्मा नहीं है, ये बुरा कर्म, ये अच्छा कर्मा है, ये बुरा कर्मा है. पर जब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि आपका इंटेंशन ही बुरा होता है, तब एक्शन बुरा होता है. वो कुछ एक्शन के लिए होता है, राइट? कुछ एक्शन तो गलत ही होते हैं ना, मतलब इंटेंशन भी गलत और एक्शन भी गलत. और आप कुछ एक्शन में ये समझ के साथ करते हो कि इंटेंशन मैटर्स. यस, तभी दीदी ने बोला है टू बी अवेयर दैट कर्मा बिकम्स गुड और बैड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस. जैसे अभी हम अवेयरनेस रखते हैं कि मुझे प्योर कर्मा करना है, और हम हर पल चेक करते हैं कि ये कर्मा गुड होगा या बैड होगा, डिसर्न करते हैं, तभी जाके वो एक्शन में लाते हैं. अगर वो स्टेट नहीं होता है, इम्प्योर कर्मा होने का चांस होता है, तो हम करते ही नहीं है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि sometimes your intention is not bad, but the effect of the karma might turn out to be bad or not the correct according to the ज्ञान. बट आई फील कि जब बाहर कर्मा बैड होता है, वो किसी ने बैड बताया है उसको. Okay, आपका इंटेंशन नहीं था, राइट? Yeah, I'll tell you the scenario. Like yesterday, I was creating that idol of Ganesha. I created it for my own creativity. And then my mom considered it when the piece was ready and it was looking good. So she found that Ganesha has come. And she started worshipping that idol statue. So I thought कि उन्होंने ना उसको भक्ति में ले लिया और उनको पूजा करने लग गए और उनको 5 दिन के लिए बिठा दिया. Every day she's doing a lot and she suffered yesterday. मतलब she was already tired, but still she stretched herself because of her own belief and all. So I thought maybe my intention was not that, but because I created this, so she took it for worshipping, and so I led her towards the bhakti. No, you didn't lead her. I did not lead her. No. आपका इंटेंशन क्या था? एक सेकंड. Out of a joke, if I said that Ganesha has come, see I created such a beautiful statue. So does it make any difference? What was the intention? That is the difference. आप Intention चाह was रहे never थे. that she started worshipping that. हाँ, आपका इंटेंशन था. No, it was not. Then your karma is pure. Okay, सोल so कॉन्शियसनेस your intention स्टेट always में leads जब to- इंटेंशन प्योर रहता है, इंटेंशन पर फोकस होता है. So pure intention always leads to pure karma. Yes, definitely. Even if senses से लगे कि it's not good, suppose, or not according to Srimad, Yes. through the senses you see that. ये तो थ्रू द सेंसेस परसीव कर रहे हैं, दैट इज एजम्पशन, राइट? Oh yes, that could be assumption.
and that is based on past experiences. वहाँ पर माया आती है, the false. क्योंकि आप स्टेज में जब परफॉर्म करते हो, आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन तक आप ड्रामा में थे, राइट? आपका ड्रामा अंदर में, पर जैसे ही स्टेज में आए, वो गणेश का जो मूर्ति है दैट ऑब्जेक्ट में चले गए, राइट? तो ऑब्जेक्ट को देखते ही वो सेंस परसेप्शन द्वारा आपकी मदर ने उसको पूजा किया, तो स्टेज में आ गए, राइट? दैट इज नॉट ड्रामा, बट हर इंटेंशन, वो भक्ति भाव अंदर में, That is drama. that for is her. drama for her. So the drama is not what we are doing outside. Yes, Not at all. not at all. It starts only from inside. हाँ, that is why it unfolds inside. और बाबा भी कहते हैं ना, 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, आपके आत्मा में ही नूंदा हुआ है. Okay, yesterday what happened? I would like to just understand the situation. Because when I set for creating that piece of art, I never had a thought or intention to create that. Okay? At morning at 10 o'clock, I was just finished my breakfast, and then I thought, let me start my work. जो भी कंप्यूटर पे काम था, but then suddenly वो जो thought आया, एक सेकंड में वो thought आया कि can I make this, ये गणेशा बनाती हूँ, आज गणेश चतुर्थी है. एक ही थॉट आया, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, and I just took the things and I started making it. Within like अनफोल्ड हुआ ना ड्रामा आपके अंदर. ओके, तो मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि क्या मुझे अवेयरनेस रखना चाहिए था यहाँ पर बिफोर, कि जैसे कि कल मैंने अपना जो प्रोजेक्ट का काम था वो नहीं किया और ये आर्ट बनाया, ठीक है? और इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आर्ट भी बहुत अच्छा बन गया फाइनली जब वो रेडी हुआ. बट मुझे ये था कि क्या मुझे वहाँ पे पहले अवेयर होना चाहिए था. व्हेन द थॉट केम, आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ एंड थिंक, डू आई रियली वांट टू डू दिस. वैसे काम भी हो गया, मेरा जो भी था प्रोजेक्ट का वो भी कंप्लीट हो गया, बट आई वाज थिंकिंग कि हर एक विचार को मुझे पहले रुक करके एनालाइज करना है, क्योंकि यस्टरडे इट वाज सो फास्ट कि आई कुड नॉट इवन थिंक और सी द गैप बिटवीन what I thought and what I did. It was like within a minute I collected the things, within a minute I started creating it, and it was soon ready also. Because you were aligned. You were aligned with drama. I was thinking I was not aligned with. I was being used by Maya, so I was just having confusion in that. Actually क्या है ना, जब अलाइन नहीं होते हैं तब भटकन होता है, तब आप स्टेज में फंसे रहेंगे. What you thought, it happened, right? आपके अंदर से खुला है कि मुझे ये बनाना है, और आपने बना लिया. वो विचार कहीं से आया, हाँ, और मेरे से कराया गया. yes. मुझे अभी तक यही लग रहा है, मेरा को करना ही नहीं था, मेरा विचार ही नहीं था, वो कहीं से आया और मैंने किया. I still cannot believe I did that. So I don't know what was that. So I'm still confused about that scene. Don't you think it is हुकुम चला रहे हैं? Do you think so? I feel so. So this is what we call the alignment with drama. Yes. Okay. I was just confused between Maya and drama. नहीं, माया जब होगी तब आप हैवीनेस फील होगा. You cannot complete in the way you prepared it. It was a very beautiful piece which you shared with me. Yeah. So what happened is when I completed it, almost एक आँख उनका नहीं बन रहा था, मैंने आपको बताया था, राइट? ये क्यों नहीं हो रहा है? वो सारा रेडी हो गया. Only and I started feeling कि वाओ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये ऐसा बन गया. और अभी तक मेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं था कि मैं आर्ट अच्छा कर सकती हूँ. सो आई हैड अ वेरी लो परसेप्शन टुवर्ड्स आर्ट फॉर माई सेल्फ.
तो ये जो अच्छा हो गया तो मुझे थोड़ा एरोगेंस आने लगा और आई Yes. स्टार्टेड टेकिंग द जॉय आउट ऑफ इट एंड देन आई वाज नॉट एबल टू मेक द आई ऑफ दैट पीस और फिर मैंने 5 से 6 बार ट्राई किया फॉर वन एंड मोर देन एन आवर तो वह हुआ ही नहीं और मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लगा, एंगर आने लगा और मैंने इसको छोड़ दिया कि अब ये नहीं हो सकता, मे बी आई एम नॉट अलाइन्ड विद ड्रामा, आई हैव टू लीव दिस नाउ. तो आई लेफ्ट इट, आई सेट फॉर योग. जैसे ही मैं बैठी तो मुझे इतना पेन होने लगा अंदर में कि वो हो क्यों नहीं रहा. इट वाज इंटेंस पेन इन माय हार्ट. Okay. एंड देन आई थॉट कि अगर मुझे खुशी भी नहीं लेनी है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आई एम डूइंग द कर्मा. और मुझे और जैसे मैं न्यूट्रल हो गई ना कि अब मुझे इससे खुशी तो नहीं मिलेगी बिकॉज आई एम नॉट अलाइन्ड विद ड्रामा एंड दिस इज नॉट द राइट वे टू टेक द हैप्पीनेस फ्रॉम थिंग्स. तो वो समझ में आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं अभी पहले मुझे ये था कि मैं बहुत ऑनेस्ट होकर आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को भेजूंगी और वो लोग मेरी तारीफ करेंगे. लेकिन जब ये आया कि अब वो बन ही नहीं रहा है एंड आई हैड नथिंग टू डू विद दैट पीस नाउ बिकॉज आई हैव नॉट क्रिएटेड इट एनीवे. इट वाज सम डिफरेंट एनर्जी वाज डूइंग थ्रू मी. सो हाउ कैन आई ओन दैट पीस? आई एम नॉट द ओनर. एज सून एज आई क्रिएटेड दिस थॉट तो अंदर में दर्द हुआ और शांत हो गया मन कि अब इसको किसी को शेयर भी नहीं करना है क्योंकि मेरा है ही नहीं. और फिर मैंने वो बनाया ना फिर से तो उसका आंख एक ही बार में बहुत अच्छा बन गया. तो फिर मुझे ये भी क्वेश्चंस आए बहुत सारे कल जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इफ द सोल इज नॉट अलाउड टू टेक हैप्पीनेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दैट इट इज क्रिएटिंग और द सक्सेस दैट इट इज ओनिंग और जो ले रही है वो जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कर लिया या जैसे कि पहले मैं बहुत लो थी, इस ज्ञान में चल के मेरा स्थिति बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत सारे काम तो कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी. और मैं उस अनुभव को ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो करती हूँ तो फिर से वो अनबैलेंस स्टेट आ जाता है. Yes. तो फिर व्हाट इज द ट्रूथ? आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर 2 days व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. हु एम आई? सी यहाँ पर वो कंसेप्ट जो है भक्ति बहन ने कंसेप्ट के बारे में पूछा था. बाबा का कंसेप्ट माना बाबा जो अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं हमें. कंसेप्ट भिन्न भिन्न है. रिलीजियस माइंडेड पीपल का कंसेप्ट अलग है, भिन्न भिन्न रिलीजन का, सन्यासियों का, सबका अलग अलग मनुष्य का मत है, अलग अलग कंसेप्ट है. पर बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से आप जब सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हो, सोल कॉन्शियस स्टेट क्या है? एक फुलफिल स्टेज है, राइट? वो फुलफिल स्टेट में आपने ये बनाना शुरू किया तो इसीलिए वो परफेक्ट बना. पर आप बनाते बनाते आप स्टेज के साथ अटैच्ड हो गए. शुरू किया आपने ड्रामा से पर उस ऑब्जेक्ट में आप अटैच्ड हो गए एंड उससे आप सुख लेने की कोशिश किया, राइट? वो ड्रामा नहीं था, सेंस परसेप्शन में चले गए आप. इसी वजह से आप हिल गए, वहाँ पे स्टेबिलिटी खो दिया. स्टेबिलिटी खोने के कारण आप वो आँख को बना ही नहीं पाए. पर जैसे ही आप फिर से अपना सीट पर सेट हुए फिर आप एक बार में वो आँख को बना लिया. तो जब आप फुलफिल स्टेट में होते हैं तब किसी ऑब्जेक्ट से आपको सुख की ज़रूरत ही नहीं है. पेट भरा हुआ है, आपको खाना की ज़रूरत ही नहीं है. पर जब आप वो फुलफिल्ड वाला जोन में नहीं होते हो, उससे बाहर निकल जाते हो आकर्षण में, जैसे सीता आकर्षण में फंस गई थी, तब आपको चाहिए कि ये फ्रेंड्स को शेयर करूँगी तो मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब में फंस जाते हैं, राइट? यस. तो हम ड्रामा में नहीं टिक के हम स्टेज में फंस जाते हैं फिर.
तो फिर हमारा जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये सोचा कि सक्सेस या फिर हैप्पीनेस या फिर अ फीलिंग ऑफ बीइंग स्पेशल, दैट इज आल्सो अ परसेप्शन. यस, वो It's not ज़रूरत ही real. नहीं है, वो आएगा ही नहीं है अगर आप सोल कॉन्शियस स्टेट में हो. You don't need it. That is that body conscious perception that we have Yes. created over a long period of time. Yes, definitely. Success and failure, right? There is nothing. I felt yesterday like nothing is existing as success or failure. Yes. I am just soul. I am what I am. Neutral state. और एक पॉइंट था जो मुझे आप क्लियर करो. तो वो ये था, मैं आपको बीच में रोक दिया, आप पहले ये कंप्लीट करोगे? नहीं, no problem. No problem. ओके. तो ये वाला पॉइंट था कि मैं जो हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड जैसे कि पहले जो मैं थी ज्ञान में आने के बाद, या व्हेन आई मेट यू, दैट वाज मी हु इज जस्ट एबल टू सी ऑल माय वीकनेसेस. जैसे कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज में क्या होता है कि हम पॉइंटर्स होते हैं, जो पॉइंटर्स उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं. तो हम जो पॉइंटर को प्रिंट करते हैं ना, हमें उसी का वैल्यू नजर आता है स्क्रीन के ऊपर, राइट? वो जहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है. Right. तो मैं सोच रही थी कि हमारा जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जो जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सिर्फ वो है जहाँ मैं अपनी बुद्धि को पॉइंट करके रखा है. Right. वो जो परसेप्शन से मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं वीक थी तभी मेरी जो स्ट्रेंथ थी या मेरी जो पावर्स थी वो मेरे साथ थी, बट मेरा पॉइंटर उस जगह पे था जहाँ पे वीकनेसेस थी, और मेरी स्क्रीन पे सिर्फ वीकनेसेस मुझे दिख रही थी. आपने वो स्ट्रेंथ को मर्ज करके रखा था. हाँ, वो नीचे चला गया था. और फिर पुरुषार्थ किया, ज्ञान को सही तरह से समझा, और फिर जो बाहर आया वो मेरा जो बुद्धि का स्क्रीन का जो था, उसके ऊपर जो पॉइंटर था वो स्ट्रेंथ वाले लाइन पे चला गया, और वहां से सीन्स बाहर निकल के मेरी स्क्रीन के ऊपर आने लगे. एंड आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दोस एज आई कैन सी देम इन द फिजिकल वर्ल्ड, और यू कैन से आउट ऑन द स्टेज ऑफ द ड्रामा. वो मैनिफेस्ट होने लग गया, राइट? हाँ, तो इनिशियली मैं वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो मेरी वीकनेसेस थी. अभी मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ जो मेरी स्ट्रेंथ है. Yes. लेकिन और मैं अपना जो जर्नी देख रही थी फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वीक रही हूँ. मैंने कभी ग्लिम्पसेस ऑफ माय स्ट्रेंथ आई हैव फेल्ट इन दिस जर्नी ऑफ दिस बर्थ, कि कहाँ मैंने ऐसे परफॉर्म किया है कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल पावर्स ही कर सकती है. हाउएवर आई वाज नॉट इन ज्ञान. पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, राइट? हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ग्लिम्स, अवेयरनेस नहीं था. उसको मैं रख नहीं पाई अपने साथ. अवेयरनेस ना होने के कारण आप उसको जागृत नहीं कर पाए थे. और तभी उसको देख करके एरोगेंस आ जाता था कि ओ मैंने किया, क्योंकि समझ नहीं थी. Yes. और फिर जब से एरोगेंस आ जाता था वो खत्म हो जाता था, वो सिर्फ एक ग्लिम्स बन के रह जाता था. Correct. तो फिर नेगेटिव परसेप्शन कि मैं कुछ नहीं कर सकती अगेन. और वो सेम चीज यहाँ पे ज्ञान में आने के बाद जब आप हायर स्थिति की ओर मूव करते हो, तो जब आप अटैच हो जाते हो, तो देयर आर चांसेस अगेन यू गो बैक टू द ओल्ड वन. योर पॉइंटर गोस बैक टू द वीकनेस. करेक्ट. स्पिरिचुअलिटी, ये लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है. So I felt कि we are nothing then. I mean, I'm not my success. I'm not my failure. Neutral. I'm not my strength. Neutral. That is why Baba said 3 zeros. Then what is the point of doing all the things? Going back to your original state. Fulfilled state. तब आपको आदत हो जाएगा वो फुलफिल स्टेट में टिकने का. आप इस दुनिया में रहोगे तो एक्ट तो करोगे, राइट? एक्शन में तो आओगे. पर जब तक आप वो फुलफिल स्टेट में, सोल कॉन्शियस स्टेट में कंटिन्यूस रहने नहीं लग जाते हो, तब तक आप इस वर्ल्ड को छोड़ भी नहीं पाओगे. यही तो करना है.
समेट रहे हो सब कुछ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब परसेप्शन है हमारे, और हम सब परसेप्शन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अभी। यस। तो ना मुझे सुख लेना है मेरी सफलता से, देखिए, या मैं जो कर रही हूँ सुख नहीं लेना है ये नहीं है, क्योंकि मैं जब नहीं लेती हूँ सुख तो वो काम सफल हो रहा है, मैंने ये देखा। हाँ, पर सुख नहीं लेने का ये एक ताकत है आपके अंदर, और वो ताकत तभी है जब आप सोल कॉन्शियस स्टेट में हो। वो ऑटोमेटिकली आप सुख नहीं लोगे। वो अवेयरनेस रख के नहीं है कि मुझे सुख नहीं लेना है करके। Okay, so it's like when you started taking pleasure from that action, तो आप वहाँ जाओ और अपने आप को बोलो कि neutralize. Yes. And this is how you are practicing of changing your perception, and over a period of time आप उस स्थिति में चले जाओगे कि वो आएगा ही नहीं। क्योंकि पेट भरा होगा तो आप खाने की तरफ नज़र नहीं लाओगे। पर अगर आपको याद ही नहीं है कि आपको वो सेंस ही नहीं है कि आपका पेट भरा हुआ है, तो फिर आप खाने के पीछे तो भागोगे। तो फिर मैं स्पेशल कैसे हूँ? देखो, स्पेशल इसलिए है कि ये बात को समझ पा रहे हो आप। मुझे लगा कि मैं जो बाबा से पावर लेकर के जो चीजों को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, जो पहले नहीं कर पा रही थी, या बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ, दैट इज माई स्पेशलिटी। नहीं, दैट इज सिद्धि, राइट? दैट इज सिद्धि, नॉट स्पेशलिटी। नो, विधि प्रॉपर कर रहे हो इसलिए सिद्धि मिल रहा है। सिद्धि में नहीं फंसना है हमें। सिद्धि में फंसते हैं सन्यासी, साधु सन्यासी लोग, राइटिंग दिस आउट, राइट? बिकॉज यू डोंट रिक्वायर द सिद्धिस। दिखाना थोड़ी है लोगों को कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुआ, ऐसे करो, ये करो। भक्त थोड़ी बनाना है हमें तो राजा बनना है। So what is the difference between एक गुरु और एक राजा? Yeah, that is the difference. That This is the is the difference. difference. हाँ, स्लेव तो नहीं राजा- बनोगे आप। राजा का- सिद्धि तो के भी राजा होगा। स्लेव बन जाते हैं, राइट? जब सिद्धि पर डिपेंडेंट होते हैं, स्लेव नहीं बनना My है। God, I think this is what is happening in Kaliyug. यस, आपको राजा if I बन के get- रहना है, भले कितना भी अचीवमेंट हो जाए। और राजा का एटीट्यूड क्या होगा, वृत्ति क्या होगी उसको असफलता को देखने की, आप वो डिस्क्राइब करो। राजा तो अपने सीट पर है, वो पता है मैं मालिक हूँ, सिद्धि मेरा ही है, उसमें I can अटैचमेंट create it नहीं होगा, anytime. राइट? अटैचमेंट नहीं होगा। सिद्धि के प्रति अगर आपका अटैचमेंट होगा तो फिर आप सिंहासन से उतर गए ना। राइट। तो जो दीदी ने आज बोला है ना कि पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे मेरा ये घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, टेबलेट, फोन, बुक्स, एवरीथिंग, my meditation place which gives me power. Yes. If I'm going out for a walk and suddenly earthquake comes, as we are seeing ना, ये चीजें अभी हो रही है, और suddenly everything get vanished. I should not have a fraction of halchal in myself, right? Yeah, if you are soul conscious. So a If king you are will the look king. like, so king, how the king will look at this situation? देखो, किंग के पास जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे, राइट? वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, वो महंगे महंगे ड्रेस भी पहनते हैं, वो सिंहासन भी पर भी बैठते हैं, बट वो नहीं होगा तो उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है कि वो नहीं है तो फिर वो राजा ही चला जाएगा। स्टिल ही इज द किंग। He can still rebuild the whole empire. Yes, by using his powers. पावर्स ही वेपन है ना हमारा, हम कॉन्कर कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो चला गया उसकी मुझे नीड ही नहीं थी, उसका टाइम था अभी जाने का। हाँ, पेरिशेबल है ना। Yes. और जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है वही मुझसे दूर जाएगा, राइट? इट कुड बी अ थिंग, Yeah. पर्सन Yes. और एनीथिंग। यस,
धीरे धीरे सोल पावर इंक्रीज जब होगा तब बाहर वाले चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. सोल पावर घटा है, इसी कारण से हमें बाहरी चीज़ें ज़रूरत पड़ गया, राइट? और मेहनत भी तभी किया ना जब पावर घटा. अदरवाइज तो सब कुछ इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल था. करेक्ट. ओके, या, थैंक यू. थैंक यू. और किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं, या कुछ समझ में आया तो. थैंक यू दीदी इस बारे में एलाबोरेटली बात करने के लिए. समझ में आया? हाँ, समझ में आया. आई थिंक हम स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि हमें विधि एक तो पता चल रहा है, दूसरा उसको समझने की ताकत भी हो रही है. आई थिंक एंड हाँ, मतलब दिस कांस्टेंट न्यूट्री, जैसे मानसी बहन बोल रही है, आई आल्सो हैव दिस एक्सपीरियंस, राइट? मेरे को भी स्केचिंग का वो है. जब भी कोई देख लेता है, या जब भी मैंने देखा है, या कहीं पे मेरे को थोड़ा दिमाग आ जाता है, तो मैं नहीं कर पाती स्केचिंग. So the thing that you mentioned, Mansi, when I go through, the minute when you have impurities, वो नहीं बनता है. Even an inch of impurity नहीं बनता है, तो फिर करेक्ट. यस, और दूसरा ना कि वो भी एक हमारा सारा परसेप्शन है, राइट, जो हमने सीखा है. जैसे कि अगर ऑफिस का काम है और हम जल्दी जल्दी चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना सब कुछ टाइम पे कर लेना है. एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम. तो कभी कभी हमें लगता है कि नो, हमें ये करना चाहिए क्योंकि आई विल मिस द थिंग. कंट्रोल्ड बाय टाइम. यू आर देन कंट्रोल्ड बाय टाइम. हाँ, और वहाँ पे ना एक इतना इम्पेशंस और इतना हरी होता है. दैट इज परसेप्शन. और वहाँ मिस्टेक्स भी होता है फिर. हाँ, सपोज मिस्टेक नहीं भी हो, स्टेबिलिटी खो देते हैं ना. हाँ, एक अंदर से ना एक एंजाइटी, एक रश होता है. कैन फील इन द बॉडी अ रश, यू नो, टू डू द थिंग. एंड देन आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ कि यू इट्स ओके. Whatever people wants to think, they may think. It's your perception, it's their perception. It's an old perception that you are thinking कि तुझे जल्दी से खत्म करके इस टाइम पे बैठ ही जाना है. Next time you may take care कि जल्दी करो, but अभी के लिए for the time being you just be ease. That is the right thing, right? करेक्ट. टाइम को कंट्रोल करने नहीं देना है, क्योंकि समय हमारी रचना है, राइट? तो वहाँ पर जब आप स्टेबिलिटी से उस जगह को क्रॉस करते हो तब परफेक्शन आता है. पर अगर टाइम के कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं. जल्दीबाजी में फिर वो इमोशंस जाग उठता है, और इमोशंस फिर बॉडी के साथ कनेक्ट कर देता है. और बॉडी के साथ जब कनेक्शन होता है, बॉडी में रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिलीज होता है, एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है ब्रेन में. एड्रेनलिन सिक्रेशन जब होता है तो फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब होने लग जाता है. और फिर कंप्लीट करो फिर. तो फिर ब्रेन जब ज़्यादा काम करने लग जाता है तो फिर एनर्जी चाहिए होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर फूड के प्रति आकर्षण हो जाता है. एडिक्शन फूड. या फिर हाँ, ये तो है. और या फिर जैसे वो मीटिंग स्टार्ट होता है, आपका कंपैरिजन भी स्टार्ट होता है. पहले जब मैं पेशेंस के साथ बैठती हूँ, आराम से, इजीनेस, सोल कॉन्शियसनेस, I don't have anything to do with anyone. I'm just concerned with my karma. But when I'm with Hari, तो मुझे अभी समझ में आया जो आपने बोला कि वो ब्रेन का लैक ऑफ एनर्जी होने के कारण अब उसको एनर्जी चाहिए. तो वो कंपेयर करके वहाँ उन आत्माओं से एनर्जी ले, खुद को प्रूव करके एनर्जी ले. However, you know the patterns, you know everything. But currently I'm just telling myself that, see, this is what your pattern has come. But initially, earlier I was doing this thing. अब समझ में आ रहा है सारी चीजें. वो सोल लेते हैं फिर, ब्रेन नहीं.
अच्छा सोल सोल एनर्जी लेती है और फिर लेने के बाद फिर ब्रेन को एनर्जी मिलता है सोल से। इमोशंस के द्वारा ब्रेन को एनर्जी मिलता है, राइट? एक बिलीफ सिस्टम भी एनर्जी देता है ना। इस पे अलग क्लास करना पड़ेगा अभी जो आपने बोला। बिलीफ सिस्टम अलग से लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया, पूरा क्लास फिर से वो स्क्वायर वन में पहुंच गया। अच्छा। सोल एनर्जी लेता है। अब मैं इस पे सोचने लग कि सोल कैसे एनर्जी लेता है। आई थिंक ये दीदी ने अभी बोला ना जो हमने सेंटेंस पढ़ा, इफ यू बिलीव पर्टिकुलर एक्ट्स आर गुड और बैड, इट मींस यू आर बॉडी कॉन्शियस। यस, सो दैट इज बिलीफ सिस्टम, राइट? कि हाँ देखो मैंने सोचा था ना ये ऐसे ही करेगा, ऐसे किया, दैट मींस ये कंप्लीट वो हो गया, रीइंफोर्स हो गया। यस। तो हमने अच्छा क्योंकि हेंस प्रूव हो गया, मतलब हमने एनर्जी ले ली। हाँ, अच्छा दिस बिलीफ विल फेल यू। अच्छा चलो मैं सेम बोलती हूँ। अभी आई थिंक 9:41 हो गए, बट लास्ट स्टेटमेंट, व्हेन आई पेंट आई विल कॉन्स्टेंटली हैव फीलिंग्स ऑफ, मेरे कुछ इस पेंटिंग में भी कुछ ट्रॉमा है बचपन का, तो आई विल हैव कांस्टेंट फीलिंग कि अच्छा नहीं बनेगा या अच्छा नहीं बनेगा, यार खराब हो जाएगा, तुझे नहीं आता। तो मेरे को ये चलता है कॉन्स्टेंटली। तो फेस इट। So I'll face it. There are days I'm able to face it. There are days when I'm not ready. So painting for me happens is I have to be mentally ready before I paint. Otherwise नहीं होता मेरे को. I have to have a state of mind. नहीं तो वो बिगड़ जाए। ठीक है? तो वो इसमें मेरी सोल कहाँ एनर्जी ले रही है? For proving that I can't paint, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। वो नहीं होता तो सोल एनर्जी लेती है। वो इमोशंस में फंस जाती है ना सोल। होगा? इमोशंस में फंस के वो डिप्लीट होने लग जाती है। वहाँ एनर्जी लेती नहीं है, वहाँ डिप्लीट होती है। फिर अगर मैं आ गई वहाँ पे और आपको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर, एंड आई गिव यू द एनर्जी, देन यू टेक। Understood. So I'm ready. Either then I will play around with my Amrit Vela and try to sleep more, or I will find a prey who is at the lower frequency, who will eventually, वो anyways क्योंकि मैं low frequency में पहुंच गई तो वो कॉल आ जाएगा उनका। वल्नरेबल कोई होगा। हाँ, वल्नरेबल कोई होगा तो उनका कॉल आ जाएगा। यस। तो बेसिकली पूरा गेम एनर्जी का है। करेक्ट। तो जिंदा रहना है तो एनर्जी ऊपर। बट दैट इज, वो एनर्जी जो आप लोगे ना, दैट इज टेम्परेरी, राइट? No, I don't want that energy. No, I'm saying that is temporary. Sure. And that will give you a sense of Power. power for short time. Actually you will get depleted. Spirituality में ये एनर्जी काम नहीं करता है, वो बाबा से एनर्जी लेने से काम करता है, राइट? या आप दूसरा सोल को कुछ सहयोग देते हो तब काम करता है। तो ऐसे नहीं है कि दूसरे सोल से आप अगर एनर्जी ऐसे छीन लिया तो आपका अमृत वेला अच्छा होगा, राइट? तो मतलब इस अभी ये एक और चेकिंग पॉइंट डाल दिया आपने कि कहाँ एनर्जी छीना तो वो फिर गया वहाँ पे। यस, क्योंकि वहाँ से ब्लेसिंग थोड़ी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो दीदी ने एक स्टेटमेंट बोला था क्लास में कि the prey becomes predator. Yes. The prey only becomes predator. तो I was looking वो at जो it. ट्रायंगल है ना एक, मैं भूल गई, प्रेडेटर। मैंने ये क्लास कराया था पांडव भवन हाँ, में। मैंने भी देखा था कभी, आपने कहीं तो देखा था एक पिक्चर। पांडव भवन में कराया था वो क्लास। तो वो होता है, प्रेडेटर बन जाता है। तो if you actually draw it to the what is happening outside, all the people जो भी है, जो टेररिस्ट में है या जो भी कहीं पे है, they were at given point in time have become a prey. Since for whatever reason they stayed in the pain and are becoming predator. Now what is happening? विक्टिम बना था, राइट? विक्टिम बना था। हाँ, विक्टिम बना था, अभी वो प्रेडिटर हो गया। अब अभी हम बाहर जाएंगे तो सभी प्रे है, सभी प्रे है। Yes. और कहीं ना कहीं पे सभी प्रेडिटर बनना चाहते हैं। तो हर जगह कोई प्रे प्रेडिटर का गेम खेल। बस
आगे पढ़ना है? दीदी मुझे एक सीन समझना है प्लीज। हाँ। 2-3 दिन से चल रहा है। हाँ हाँ बोलिए। ओके, इज इट ओके? फिर टाइम हो जाएगा इफ वी डोंट रीड दिस। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये सीन है, वो कुछ फीलिंग्स है मेरी उसके रिलेटेड है। सो द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आई फील एवरीथिंग इज सो टेम्पररी, लाइक माय थॉट्स एंड माय फीलिंग्स, that it has nothing to do with reality. How can I understand what is real? So I'll tell you the scene now. This is the question. The scene is, जैसे कि मेरा स्थिति अच्छा था, बहुत अच्छा था. I was calm, stable, and I started stretching my limits. जैसे कि मैंने अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ चीजें ऐड की, राइट? और मैं बहुत खुश थी उसको ऐड करके, मैं कर पा रही थी वो चीज. और फिर 2-3 फ्रेंड्स नए आ गए. अच्छा. और मुझे लगा कि मैं यहाँ पे सेवा करूंगी. तो मुझे बहुत अच्छा, मैं इंटरप्रिटेशन करने लगी कि देखो अब मेरा स्थिति कितना सही चल रहा है कि बाबा एंड रामा आर गिविंग मी मोर सोल्स सो दैट आई कैन इंक्रीज माय भाग्य. आई कैन ऑल्सो टीच देम हाउ टू बी क्लोज टू बाबा. तो वो थोड़ा मुझे लगा, मैं बहुत खुशी लेने लगी उससे. इट वॉज द काइंड ऑफ इल्यूजन विच आई फील नाउ. उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ सोच के कि मैं प्रोग्रेस देख के, मेरा खुद का प्रोग्रेस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. और खुशी हो रही थी. बाबा, ड्रामा, द सोल्स हु आर कमिंग, देयर आर लॉट टू लर्न फ्रॉम देम आल्सो. तो ये सारी चीजें अपने मन में खिचड़ी बना के, माना सोच के बहुत अच्छा फील कर रही थी मैं. और मैंने थोड़ा एनर्जी दिया सब चीजों को फॉर 2-3 days. And I was not able to spend alone time or Gyan Chintan. And suddenly a lot of anxiety started in my heart after 3 days. And initially मैं morning में उठी नहीं पाती क्योंकि इतना anxiety if I wake up. And I was not understanding why this anxiety is happening all of a sudden. Then I thought कि how my days are going. तो realize हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा time चीज़ों को दे रही हूँ outside. Then going inside. तो फिर जो मैं सोच रही हूँ चीजों को अपने मन के अंदर, तो कुछ रियल तो है ही नहीं, राइट? समझे मेरा क्वेश्चन और मेरी सिचुएशन? मन के अंदर जो सोच रहे हैं वो रियल नहीं है. मन के अंदर बाहर की चीजों को देख करके जो मैं अपने मन के अंदर इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, वो जो नेगेटिव सीन में हो रहा है या पॉजिटिव सीन में हो रहा है, एक्चुअली वो सेंस परसेप्शन द्वारा कर रहे हो आप. लेकिन जो मैं ड्रामा का सोच रही थी वो तो आउट ऑफ सेंस परसेप्शन था. हाँ, ड्रामा तो आउट ऑफ सेंस परसेप्शन है. नहीं, मतलब जो मैं सोच रही थी ना कि वो आत्माएं आई, ये ड्रामा ने भेजा है, बाबा ने किया हाँ, है. पर आप इमोशंस में फंस गए ना, बाहर चले गए. आपको ठीक है, खुशी मिला, पर उसको अतीन्द्रिय सुख में चेंज करना है, वो ताकत में चेंज करना है, स्पिरिचुअल पावर में चेंज करना है उसको, ना कि बाहरी रूप से खुशी, हैप्पीनेस ले लेना. तो वहाँ पर आपने स्टेबिलिटी खो दिया, अपना बैलेंस को खो दिया. और फिर लगा कि अब मुझे कोई सेवा नहीं करनी. आई एम जस्ट गोइंग टू बी अलोन एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन. फिर आप जाना चाहते हो उस बैलेंस में, फिर आप उस तरफ ज्यादा करना चाहते हो. फिर वो दोनों चीजें खींचती है. एक साइड से आपका सॉलिट्यूड खींच रहा है, एक साइड से वो आत्माएं खींच रही है जिनको सेवा करनी है. यस. And you are in the mid and you don't know what to do. And I'm choosing myself first. You know, I will not go there whatever happens. इसीलिए तो बैलेंस को नहीं खोना है. 4 सब्जेक्ट का बैलेंस हमेशा रखना है. और दादी जान की क्या कहते थे, मैं सिर्फ 5% सेवा के और देती हूँ, बाकी सब ज्ञान, योग, धारणा. क्योंकि ये 3 करने से ऑटोमेटिक सेवा हो जाता है, निरंतर सेवा वाला स्टेट हो जाता है. तो सेवा अवेयरनेस में सेवा करना वो कम करने से भी चल जाता है. क्लियर हुआ? तो वो एक्टिविटीज जो मैंने ऐड की थी, like my first, I have to रीसेट माय प्रायोरिटीज, राइट?
हाँ, आई थिंक आपने खुद से पूछा नहीं वो स्ट्रेच करने से पहले। आई थॉट कि अब तो मैं इतनी अच्छा स्टेज हो गया है, मैं बहुत सारी चीजें कर पा रही हूँ, तो आई एडेड द एक्टिविटीज एक्स्ट्रा मंथ्स। तो या ये चेकिंग है दिस इज कि गुड, आप दिस इज गुड कि आप अच्छा स्टेज हो गया है, ये आप समझ पा रहे हो, पर ये नहीं है कि जो आपने जमा किया उसको खर्च कर दो। ओके, यू आर राइट। जमा किया वो खर्च नहीं कर देना है। अपना वो जब बैलेंस खर्च को हो मेंटेन जाता करना है, है। हाँ, जो तो फिर जमा डिप्लीट हो किया जाता हुआ खर्च हो जाता है, है। तब कोई बोल रहा है और अच्छा ओके, तो तब जाके मैंपन आता है। यस यस। तब आप निमित्त नहीं होते हो, तब आप मैं बन जाते हो। एज लॉन्ग एज आप बाबा का दिया हुआ यूज कर रहे हो, आपको कभी मैंपन नहीं आएगा, करेक्ट। अटैचमेंट भी नहीं होगा। इसीलिए तो निमित्त क्या है? निमित्त निर्माण 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 निमित्त निर्माण निस्वार्थ, ये लास्ट मुरली का है। हाँ। I don't know. निमित्त निर्माण निर्माण, निमित्त निर्माण और निस्वार्थ। हाँ ये याद रखना होता है। इसी कारण से ब्रह्मा बाबा ने अंत समय में निरंकारी वर्ड को अंडरलाइन करवाया, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि जो जीवन में सोचा ही नहीं है वो अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर एक तो कंपैरिजन में फंस जाते हैं, एक वो सिद्धि को देख के ज़्यादा खुशी में फंस जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, अपने को बड़े मान लेते हैं, सुपीरियर फील हो जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो बहुत सावधान रहना। चेंज कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। एवरीथिंग यू कैन चेंज, हाँ। बट उसके बाद जो वापस पटरी में फिर ड्रामा के आना होता है, क्योंकि ड्रामा के पटरी में तो आना ही होगा। Yes. वो जो रास्ता होता है वो इतना पेनफुल होता है कि दोबारा एक बार जो मेरे साथ हुआ, मैं तो और दोबारा रिपीट ना करना चाहूंगी कि हो गया बार। तो ड्रामा का पटरी कहाँ है? अंदर आते हो ना, हाँ, अंदर रास्ते हैं। अंदर उस स्टेट में फिर से वो सीट पर सेट होते हो जो, तब आपका सारा बैलेंसिंग हो जाता है। करेक्ट, जैसे मानसी मैम ने बोला मैपन तो बहुत ही वो में मतलब ईगो में भर देता है, फिर धीरे धीरे वापस फिर गिर के रो के पढ़ के सैड होके फिर वहीं पे आते हैं। हंसी बहन, आपको भारीपन आ गया होगा इनिशियली उस पता समय। नहीं चला मुझे। हाँ, पता क्योंकि नहीं मैं चलता अच्छा है। मैं जब रात को सोने से पहले मुरली रीड करती तो चिंतन भी अच्छा चल रहा था, तो समझ में ही नहीं आया। लेकिन सुबह उठ के एंजाइटी, तो मुझे समझ में नहीं आई क्या हो रहा है। बट नाउ देन आई अंडरस्टूड कि मैंने जब अपना सारा चेक किया, मुझे लगा मैं तो सेवा कर रही हूँ, योग भी चल रहा है साथ साथ में, बट बैठ के नहीं किया मैंने। तो मुझे लगा हाँ चलता है, अभी सेवा ज्यादा हो रही है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट ज्ञान के भरे हुए हैं, तो उसमें मैंने अपना साथ छोड़ दिया। और ये मुझे तब जाके रियलाइज हुआ जब एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। मुझे लगा मुझे फिर से दवाई लेनी पड़ेगी क्या। देखिए, बॉडी में स्लिप होना बहुत इजी है। बॉडी में स्लिप होके स्टेज में आ जाना, बॉडी भी स्टेज है, दीदी ने कहा ना, जो मिनी स्टेज है, मिनी स्टेज से फिर बड़ा वाला स्टेज में आना बहुत मतलब इतना सटल है कि पता ही नहीं चलता है। यस, यू आर राइट। और ड्रामा इज सो ब्यूटीफुल। वो एंजाइटी के द्वारा एक मैसेज था कि आई नीड टू कनेक्ट बैक टू माई सेल्फ। यस, आई फील ड्रामा इज टेकिंग केयर ऑफ मी। डेफिनेटली। बाबा से ज्यादा मुझे अभी ड्रामा से प्यार होने लगा है। डेफिनेटली। इतना सुंदर ये बना हुआ है सारा जो मैकेनिज्म है इनसाइड ऑफ अस। आज शाम को मैं दीदी को यही बोल रही थी कि दीदी ड्रामा को अगर समझ लिया तो बस। अब मैं बोल रहा हूँ करेक्ट। And it is always in our favor. It is never in the favor of others. Yes. Like आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे के लिए करो, ये ड्रामा नहीं है। ड्रामा वांट्स कि आप खुद के लिए करो पहले, और सबके लिए फेवरेबल होता है फिर जो रिजल्ट होता है। यस यस। इसीलिए 3 बिंदी। बट दीदी ये पॉइंट आपने एक साल से बोला ड्रामा वाला,
समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा। अब आया? नहीं पता नहीं, अब पूरी तरीके से अभी और भी टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उस पे ठप्पा लगेगा सर्टिफिकेट। अभी तो चल रहा है कौन सा वाला पॉइंट? कि ये ड्रामा को मतलब समझो, ड्रामा इज वेरी ब्यूटीफुल। दीदी आई थिंक वुड हैव टोल्ड दिस, लाइक मतलब ये तो उनका बहुत बार बोला था, ड्रामा इज वेरी ब्यूटीफुल, Yes. अलाइन योरसेल्फ। तो वो समझ में नहीं आता था। तो अभी भी आई डोंट नो हाउ मच, बट एटलीस्ट वो सरफेस लेवल से थोड़ा डीपर लेवल पे गया है। ड्रामा में आप अलाइन तभी रह सकते हो जब अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे, और स्टेबिलिटी इज सोल कॉन्शियस स्टेट। मतलब डिजायर टू हैव समथिंग और बी समथिंग इन अ सर्टेन वे। जब नो इमोशंस में फंसना नहीं है, नो स्लेवरी, नो एडिक्शन। कंक्लूजन जो, हाँ दीदी ये भी एडिक्शन है ना? हाँ, जो Emotion. अपनी रचना से या अपनी क्रिएटिविटी से या अपनी स्थिति से प्यार हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, these are all addictions. दिस आर ऑल एडिक्शंस। एडिक्शन विद द इमेज, जो आज एडिक्शन में क्या होता है, एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है ना, फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग देता है वो। आप इमोशंस जब यूज करते हो उस समय भी देता है। Yes, you're right. It gives you a value, deep value yourself. Ki, oh, this is what I am. So I value myself because of that. Correct. And if I don't have that thing, then I don't have any value. And then I will be like someone else who is not me. Right. To get that value. करेक्ट। क्योंकि सेंसेस द्वारा वो दिखा है कि वो उसको ऐसे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। हाँ, तो you will forget yourself fully. You will try to pretend or be like someone so that you feel yourself valuable. अपना बुद्धि को पत्थर बना देते हैं फिर। Oh yes. और फिर आप ड्रामा से उतर जाते हो, और बीइंग सोल इज अ वेरी डीप थिंग। मुझे अभी आज तो ये लगा कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या और आत्मा होना क्या। जो बाबा बोलता है ना कि व्हाट इज, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। yes. तो आत्मा होना माना बहुत गहरी चीज है ये। बहुत, ये ऐसे ही नहीं है सिर्फ मैं आत्मा बिंदी हूँ और बस बाबा बिंदी है और आई एम जस्ट देयर विद हर। नो, इट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग बीइंग अ सोल। क्योंकि उस स्थिति में स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं ना, स्वरूप बनना है। समझने से ही वो स्वरूप में टिक पाएंगे। Right. I think I got more clarity today. Okay, that's nice. Thank you so much. Thank you. अंकिता बहन, आपका भी प्रश्न था, आपने एक भी प्रश्न नहीं किया। आंसर मिल गया क्या आपको सारा? ठीक है, फिर और किसी को कुछ कहना है? ओके, फिर ओम शांति। बाकी जितना बचा है एक दिन और कर लेंगे। हाँ अंकिता बहन बोलिए। ओम शांति दी। हाँ अंकिता बहन बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप क्या बोल रहे थे? कि आपका प्रश्न था ना कुछ। हाँ, मैंने आपसे क्लियर किया था। और बाकी हाँ, जो मानसी बहन आज बोल रहे थे ना, तो मैं भी वही आज यही था, सेंटर पे बैठी तो मतलब अंदर फिर से क्या, एक दीदियों से भी ना कंपैरिजन हो रहा था और अपने आप को एक अहंकार भी, एरोगेंस भी आ रहा था कि हाँ अब मैं ना, मतलब मैं ज़्यादा समझ रही हूँ। तो फिर उधर ही बाबा से कि उसे अहंकार को फेस कर रही थी, बट इवन देन फिर वो नॉर्मल हो गया। बट मैं फिर देख रही थी, फिर मेरे अंदर एंजाइटी आ रही थी। बट वो पकड़ में अभी वो किस बात की, जैसे मानसी बहन बोल रहे हैं ना कि एंजाइटी किस बात की, वो मुझे पकड़ में नहीं आई योग में भी। एक्चुअली क्या है, जब एरोगेंस आता है ना, आप डिप्लीट हो जाते हो और डिप्लीशन के बाद फिर एंजाइटी आ जाता है। ना वैसे ही 2-3 बार ऐसे ही ना सेंटर पे ना कुछ था, दीदी, बड़ी दीदी के पास गए थे, तो वो ऐसे ही 2-3 बार ऐसा कुछ स्टेज आया, एक अहंकार वाला समथिंग।
और फिर बैठे बैठे ना बाबा के पास बैठे भी एंजाइटी आने लगी, फिर उसको फेस किया तो नॉर्मल हुई, ऐसे हो रहा था। अगर फेस वो कर I- पाते हो तो ठीक है, अगर फेस नहीं कर पाते हो तो कुछ समय के लिए अपने आप को मतलब वहाँ उस जोन पे जाने से रोक कर खुद को ओके पहले शक्तिशाली बनाओ, फिर जाना शुरू करो, क्योंकि ओके डिप्लीट होने के लिए नहीं जाना, फिर आपका ओके। संबंध भी खराब होता है दीदियों के साथ, राइट? नहीं मतलब ये सब मेरे अंदर का था, हाँ, फिजिकली तो मैं उनका कांटेक्ट इंटरनल नहीं था। हाँ इंटरनल संबंध vibrations- खराब होता है ना, ओके। स्पिरिचुअल रिलेशन खराब होता है, हम्म, वो तो दिखता नहीं है, सटल है बहुत, हाँ वो सटल वो एनर्जी भी चल बचाना रही है। हम्म, गॉट इट। ठीक है, फिर आज रखते हैं, बाकी जो बचा है फिर एक दिन कर लेंगे। ओम शांति, थैंक यू।